everyone. So let's start our class. Earlier in our classes we have discussed about food. Okay, what we have discussed about food, we saw that we don't eat similar type of food all the time. We need different types of food that includes different types of nutrients. Okay, we have already seen this. Okay, so now as we have seen that we need different types of food. What we need? Different types of food. Okay, it can be anything. We have seen many examples earlier, so it can be anything. So we have a variety of food. हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके का क्या है, खाना है. और one more thing what we had discussed is ingredients. What are ingredients? Yes, all the raw material required to prepare a dish or any food item. ठीक है, this was ingredient. We have discussed this already. Now, as I am saying here that we need different types of food. So, from where these different types of food comes from? हाँ, इतना सारा अलग अलग टाइप का खाना जो है वो कहाँ से आता है हमारे पास? कैन यू टेल, कैन यू इमेजिन दिस कि जो फूड की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आती कहाँ से है? दैट मीन्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? जो फूड हम खाते हैं वो आखिर आता कहाँ से है? तो व्हाट आर द सोर्सेज? जस्ट टेल मी फर्स्ट. Very good. First source is, and the ultimate source, बहुत important source, that is the plant, है ना? Okay, we will see the examples later. Second source, think. और कहाँ से खाना आता है हमारे पास? Very good. That is animals. So we are having two main sources of our food. What are they? They are plants and animals. First one is plants and then second one is animals. Now let's see कि plants से कहाँ से कैसे खाना आता है. आप जब घर में रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, किस चीज़ की बनती है वो? Wheat से बनती है. And from where wheat comes? From fields, है ना? Fields से आपके पास आता है wheat. तो fields में क्या है? They are plants. From plants we get wheat. तो wheat or rice we can say. तो what are they? They are grains. They are grains, है ना? Okay. Second thing, very common example. Do you eat fruits? हम fruits खाते हैं. तो all the fruit from where they come? They comes from different plants, different trees. Apple tree, mango tree, they comes from different plants or trees. So we can say fruits also come from plants. अदर और क्या चीज़ें आती है प्लांट से खाने के लिए? सब्जी खाते हैं आप साथ में. वी नीड वेजिटेबल, ओके, अलोंग विद ग्रेन्स. तो वेजिटेबल्स ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स, ओके. एंड nuts are also coming from plants. So these are the examples you can keep in your mind. What are they? Grains, fruits, vegetables and nuts. They come from plants. So plants are the source of food for us. Clear? Next, let's come to the animals. How animals are the source of food? Animals हमें खाना कैसे देते हैं? आपने एक बात हमेशा सुनी होगी that you must have milk in your meal. Okay, because meal is a complete diet. Milk के अंदर आपको बहुत सारे nutrients मिल जाते हैं. कंप्लीट फूड कहा जाता है मिल्क को. तो मिल्क कहाँ से आता है हमारे पास? यस, फ्रॉम एनिमल्स. सो अ वेरी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट थिंग विच वी इंक्लूड इन आवर मील, दैट इज मिल्क. फर्दर, मिल्क अगर एनिमल से आता है तो सारे मिल्क प्रोडक्ट भी कहाँ से आए? इनडायरेक्टली एनिमल से. वेदर इट इज़ बटर, इट इज़ पनीर, इट इज़
anything, cheese or anything else, that all the things these are coming from animals. Okay, and any other thing, we get eggs from animals, we get meat from animals. So like this we are getting so many things from animals also. So I hope these two sources are clear to you. First one plants and second one is animals. They are the two main and important source of food for us. Okay, in spite of these two there are some unusual sources. उनको हम count नहीं करते इसके अंदर, but yeah, they don't include in these categories. आपने एक नाम सुना होगा सी फूड का नाम सुना है आपने? सी फूड को हम इन दोनों कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. सी फूड के अंदर जैसे कि सी वीड्स, जो समुद्र के अंदर उगने वाली वीड्स होती हैं, उनको भी कई जगह में, कुछ एरियाज़ के अंदर, कुछ कंट्रीज़ में एज अ फूड खाया जाता है. तो दिस इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी. ओके, एंड एनी अदर थिंग विच कम्स इन योर माइंड? एनीथिंग? यस, वन इज स्मॉल इंसेक्ट्स. ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स, बिकॉज वी डोंट इंक्लूड इंसेक्ट्स इन एनिमल्स, है ना. एनिमल्स की कैटेगरी में तो नहीं आते ना इंसेक्ट्स. और बहुत सी जगह पर क्या होता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं क्रैब लाइक, उनको क्या किया जाता है कि डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है एज फूड. ठीक है, तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं मोस्टली, वहाँ पर मतलब जो इस टाइप के जो मतलब सी से रिलेटेड जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है. और मोस्टली प्लेन एरियाज़ के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं. वन मोर इज़ रेड आंट. रेड आंट इज़ ऑल्सो अ कॉमन एग्जाम्पल दैट इज़ समवेयर यूज्ड एज अ फूड. ठीक है, कुछ एरियाज़ के अंदर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड. सो दे आर सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स. इनसे हट के कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो हम फूड के अंदर कंज्यूम करते हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दैम डायरेक्टली. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. They were the sources of food, plants and animals, and there were some other examples. So let's move ahead now. Now we will discuss plants in a little bit detail. Okay. As in a plant we eat almost all parts of plant. ऐसा नहीं है कि plant का सिर्फ एक ही पार्ट है कोई पर्टिकुलर जिसे हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. तो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम एज अ फूड ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. ये मैंने प्लांट्स के पार्ट लिख लिए यहाँ पर. प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट used for eating purpose. ठीक है, लेट्स से सबसे पहले मैं लेती हूँ लीफ ले लेते हैं. नाउ टेल मी एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ लीफ. लीफ के कोई भी दो एग्जाम्पल्स बताओ जिन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं. कौन से पत्तों को हम खाने में यूज़ करते हैं? यस, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज स्पिनच. स्पिनच क्या होती है? पालक. आपने ज़रूर खाई होगी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं. ओके, एंड यू कैन से मिंट. मिंट क्या होता है? पुदीना. ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं? चटनी के रूप में या फिर फर्दर किसी भी चीज़ में, मतलब हमारे खाने के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं. ओके, नेक्स्ट लेट्स से फ्रूट. Fruit is also a part of plant. तो fruit तो directly we eat. That is, we can say apple. Apple is a fruit, and mango. Okay. Now let's say stem. What are the examples of stem that we eat as food? जो हम खाते हैं, ऐसी stem का नाम बताओ. Yes, very common. That is sugar cane. Sugar cane आपने देखे होंगे fields में, है ना.
लंबी लंबी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, शुगर केन जो गन्ना होता है, दैट इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द स्टेम इटसेल्फ. ओके, एंड जिंजर is also a stem. Okay, now root. Root, generally we say that roots are not eaten, but there are some roots that store food in them. ठीक है, कुछ ऐसे रूट्स होती हैं जो अपने अंदर क्या स्टोर कर लेती हैं, खाना स्टोर कर लेती हैं. ओके, और जब उनके अंदर खाना स्टोर हो जाता है देन वी कैन ईट दैम. वो स्पेशली मतलब यूज़ की जाती हैं एज अ फूड. ऐसी कौन सी हैं? आर कैरेट और वी कैन से रेडिश. कैरेट एंड रेडिश बोथ आर रूट्स. ठीक है, वो रूट्स की तरह से उगती हैं बट दे स्टोर फूड इन दैम, दैट्स वाई वी कंज्यूम दैम एज फूड. अंडरस्टूड? ओके, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? Leaf, fruits, stem, roots. Okay, yes. Flowers, very important parts of plant. Yes, can you say any flower name that is used for eating purpose? Any flower? Yes, what is this? Cauliflower. कॉलीफ्लावर इज, जो गोभी होती है वो क्या है, दैट इज कॉलीफ्लावर एंड इट इज़ अ फ्लावर. ओके, दैट इज यूज्ड एज फूड. और वी कैन से ब्रोकली. ब्रोकली इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉलीफ्लावर बट इट इज द advanced stage of cauliflower. A large amount of food is stored in broccoli. Understood? So here are some, or vegetables are also included in this. ठीक है, so these are some parts of plant that we consume as food. ठीक है, ये सब examples हैं जिन्हें हम as a food consume करते हैं. So here we have seen that there are many things that we consume as food related to plants, and we have seen that there are many things related to animals also. So what are the two main sources of food for us are? Yes, they are plants and animals. Okay. अच्छा, चलो अभी हमने ये सब जो प्लांट्स के एग्जाम्पल देखे, ठीक है, चाहे वो स्टेम थी, चाहे वो लीव्स थी, चाहे वो रूट्स थी, फ्लावर थे, फ्रूट थे, जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे ये सब क्या थे, हम इन्हें खा सकते थे ना. तो इसके लिए एक टर्म का हम यूज़ करते हैं. ओके, व्हाट इज़ दैट टर्म कॉल्ड? जिन भी चीज़ों को हम खा सकते हैं, वी कैन ईट, दैट दोज पार्ट्स आर नोन एज edible. There is a term that is used for such parts, that is edible. Edible means that can be eaten, जिसे खाया जा सके. तो कोई भी चीज़ जो आप खा सकते हो वो क्या कहलाएगी? एडिबल. अंडरस्टूड? चलिए एनिमल्स का एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम. आपने हनी खाया होगा, है ना, शहद सबने खाया होगा. ओके, डू यू नो हाउ वी एक्सट्रैक्ट हनी? कहाँ से आता है हनी हमारे पास? डू यू नो दिस? इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फ्लावर. ठीक है, हेयर वी आर हैविंग अ फ्लावर. ओके, नाउ this middle portion of flower where the anthers are present, in this middle portion there is something present. What is this? This is nectar. Okay, what is this? This is nectar. And what is nectar? It is a sweet juice. एक स्वीट मीठा सा जूस होता है इस मिडल पार्ट के अंदर. ठीक है, नाउ अ बी और अ हनी बी, ओके, comes here, sits on this, and what does it do? It sucks this nectar.
इस नेक्टर को हनी बी क्या करती है, सक कर लेती है, एंड नाउ इट गोज टू इट्स बी हाइव, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी बीज अवेलेबल होती हैं। आपने बी हाइव देखा होगा ना, वहाँ पे ऑलरेडी कितनी सारी बी हाइव्स होती हैं। तो ये सारी की सारी बी हाइव्स क्या करती हैं, यही वाला प्रोसेस रिपीट करती रहती हैं। दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड जस्ट पुट इट, collect it in this hive, that is beehive. Okay, and when there are some special people who are capable of extracting honey from these hives, हम नहीं, सब नहीं निकाल सकते. There are some special peoples, they are trained peoples. What they do, they go closer to it or they follow some tricks and what they do, they extract, वो इसके अंदर से जो हनी इकट्ठा किया होता है इतनी सारी बीज ने मिलकर, उस हनी को ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा कर लेते हैं एक कंटेनर के अंदर. ठीक है, इन दिस वे वी गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स एंड who convert the nectar into honey? They are the bees. Okay, so bees are the source from where we get honey. In this way, I hope this process is clear to you. Okay, so in this way we get honey. So honey is a mixture of what? Plants and animals both, है ना. हनी आता तो है फ्लावर से, बट फ्लावर से हम तो नहीं हनी बनाते ना, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स का नाम भी नहीं ले सकते, बट हनी इज़ अ मिक्सचर ऑफ एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ती है उसमें, और इंसेक्ट्स कह सकते हैं हम यहाँ. दे आर नॉट एनिमल्स, दे आर इंसेक्ट्स. ठीक है, एंड प्लांट्स बोथ आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हनी. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ वन मोर लास्ट स्मॉल टॉपिक, एंड इट्स नॉट अ टॉपिक ऑल्सो, इट्स जस्ट अ थिंग टू टेल यू. ओके, आपने स्प्राउट्स का नाम सुना होगा, है ना. व्हाट आर स्प्राउट्स? चल लेट्स सी व्हाट आर स्प्राउट्स. आपने क्या करना है, मूंग दाल देखी होगी आपने, है ना. आपको मूंग दाल लेनी है कंप्लीट, पूरी वाली. ठीक है, वी विल टेक मूंग दाल. ओके, आपने एक पूरे कंटेनर के अंदर मूंग दाल ले ली. क्या है इसके अंदर? अब आपको करना क्या है, इसे आप भिगो कर रख दीजिए. एक कंटेनर लो, ठीक है, उसके अंदर आप इसको भिगो कर रख दो कुछ घंटों के लिए, 7-8 घंटे के लिए आप इसको भिगो दो. ठीक है, इसके अंदर आपकी मूंग दाल है, इसमें पानी डाल करके आप इसको भिगो कर रख दोगे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका जब 7-8 घंटे ये भीग चुकी होगी अच्छे से, उसके बाद आप इसका पानी निकाल दोगे और एक क्लॉथ लोगे, कॉटन क्लॉथ, ये सारी मूंग दाल इसके अंदर निकाल दोगे. ठीक है, निकाल दी हमने सारी मूंग दाल इसमें. उसके बाद क्या करना है, आपको इसको रैप कर देना है. ठीक है, इसको आप रैप करके और एक ऐसे बंडल बनाकर इसका क्लस्टर सा, और आप इसको कहीं हैंग कर दो या ऐसे बांध के, किसी चीज़ से बांध के, और आप छोड़ सकते हो कुछ देर के लिए. ठीक है, तो अभी क्या किया हमने, मूंग दाल ली, उसको वाटर के अंदर हमने भिगो के रखा, उसके बाद उसको एक कॉटन के क्लॉथ पर निकाल लिया, कॉटन क्लॉथ. ठीक है, यहाँ क्या किया हमने, उसका पानी बाहर निकाल दिया और सिर्फ मूंग दाल बच गई. नाउ उसको कॉटन क्लॉथ को आपने रैप करके और उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया. नाउ व्हाट विल यू सी, जब आप इस कॉटन क्लॉथ को फिर से खोलेंगे तो जैसे ये आपकी मूंग दाल है. ठीक है, अब आपको क्या नज़र आएगा, इनके ऊपर छोटे छोटे वाइट आपको ऐसे कुछ ग्रो हुआ नज़र आएगा. आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार, है ना. अगर आप घर में स्प्राउट्स को यूज़ करते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा. तो ये ऐसा क्या हो जाता है, ये ना मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. मूंग क्या है, सीड है ना, छोटा सा. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ग्रो करना जब कोई चीज़ स्टार्ट कर देती है, वी कॉल इट स्प्राउटेड. ठीक है,
जब भी कोई चीज़ ऐसे ग्रो करना, डेवलप करना, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है तो what we call it, this is sprouted. Now we call that these moons are sprouted. Okay, so this was the last topic of your chapter. Now your chapter is finished here. So what we have discussed in this chapter yet, can we recall? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? Food. What is food? Why do we eat food? Food gives us energy. Food helps us to grow. Food protect us from various diseases. Okay, these were the reasons why do we eat food. Further we saw that we need different varieties of food. हम same खाना हमेशा नहीं खा सकते. We need variety of food. Then we saw that for different varieties we need different ingredients. अलग अलग ingredients हमें चाहिए. ठीक है. Then we saw the sources of food, कहाँ कहाँ से हमें खाना मिलता है. So the main sources of food are plants and animals. Okay, उनके पार्ट्स हमने देखे, कौन कौन सा फूड हमें उनसे मिलता है वो भी हमने देखा. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ आई थिंक रह गई थी, दैट इज़ सीड. जो हमने प्लांट्स के पार्ट्स किए थे उसके अंदर एक सीड भी पार्ट होता है ना. सीड भी तो प्लांट का ही पार्ट होता है क्योंकि प्लांट जो है वो सीड में से ही निकल कर आता है. तो सीड के एग्जाम्पल कौन से होंगे? राइस और वीट. ठीक है, चावल और जो गेहूँ आप यूज़ करते हो चपाती के लिए, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सीड्स. ठीक है. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखे. उसके साथ साथ हमने फिर क्या देखा कि हनी की एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, एडिबल क्या होता है, द थिंग्स दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड edible, and then we saw what are sprouts and how to prepare sprouts. Okay, so here your chapter is finished. Now you have to prepare it well, read it from your books and stay safe, stay home. Thank you. Bye bye.